Hello everyone, welcome to our channel Mr. Maths Find Your X. So till now we have discussed quadrilateral chapter from class 8th NCERT, which is chapter 3 in your book. So we were discussing types of quadrilateral. Till now we have completed trapezium and kite. So what are the key features to identify that it is a kite, or what are the key features when we can say it's a trapezium? So you can watch our earlier video to get the better understanding of trapezium and kite. Now there are some conditions we put on quadrilaterals to get new quadrilaterals. When we are saying getting a new quadrilateral means we are getting a specific type. So there are some mathematical conditions which we put on earlier quadrilaterals to get another quadrilateral. For example, here if we put a condition on a trapezium of being parallel sides, or taking all the pairs of sides to be parallel, then it will be a parallelogram. Like earlier we have studied that trapezium have one pair of side parallel. When we are saying one pair of side parallel, then we are getting a trapezium. But what will happen if we make both the pairs parallel, both the pair of side to be parallel? Then it is called a parallelogram, which takes us to the definition of parallelogram, that it is a quadrilateral where opposite sides are equal. So this is the main thing about a quadrilateral, that opposite sides are parallel. So you can see here I have drawn two figures, which is one is A B C D और दूसरा हमने बनाया है M N O P. कैन यू फिगर आउट इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है? पैरेलल मीन्स वो साइड्स जिनको आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें तो वो कहीं नहीं मिलेंगी. अगर आप इस वाले क्वाड्रिलेटरल में विच इज़ MNOP में लाइंस को एक्सटेंड करने की कोशिश करें, जस्ट ट्राई एंड एक्सटेंड इट, सो आप यहाँ से पाएंगे कि MN जो है इट विल नेवर मीट OP. So this is one pair which is parallel. But what about MP and NO? If you try to extend them infinitely, then they will meet somewhere here. We'll draw this, then we'll try to ये देखिए, यहाँ जाकर ये दोनों मिल गई इस पॉइंट पर. MN MP and NO, these are not parallel. They are not parallel because अब इन्हें इनफाइनेटली एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आगे यहाँ पर जाकर मिल रही हैं. सो दे कैन नॉट बी सेड टू बी पैरेलल. Now let us take another example. अब हमारे पास जो ऊपर एग्जाम्पल है हम उसे देखने की कोशिश करते हैं कि what will happen if with ABCD. आप ABCD में पाएंगे कि आप दोनों साइड्स को अगर इनफाइनेटली एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो they will be parallel, they will never meet, they will go in these directions like this. Same happens with this. आप AD और BC को extend करिए infinitely, they will never meet. So from here we got the definition of a parallelogram, that opposite sides are parallel. So the quadrilateral where opposite sides are parallel, it is called a parallelogram.
सो पैरेललोग्राम के लिए जो मेन कंडीशन है वो है ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। अब कुछ एलिमेंट समझ लेते हैं हम पैरेललोग्राम के। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें समझना होगा व्हाट आर अपोजिट साइड, व्हाट आर अपोजिट एंगल, व्हाट आर एडजेसेंट साइड एंड व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। देखिए हमने पहले बोला था क्वाड्रिलेटरल की टाइप जो है उनके साइड्स और एंगल के बेसिस पर ही सारा होता है, तो हमें पता होना चाहिए विच आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड एंड विच आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। देखिए अगर मैं ए बी साइड को देखूँ तो उसके ऑपोजिट कहने का मतलब उसके सामने कौन है, ये साइड सी डी। तो ऑपोजिट पेयर आपको दिख रहा है, पहला पेयर है ए बी, जो है ए बी एंड सी डी एक पेयर है, मतलब ए बी के ऑपोजिट आपको सी डी मिल रही है। दूसरी तरफ देखेंगे ए डी के ऑपोजिट कौन है, क्लियरली विजिबल है, ए डी के ऑपोजिट इज बी सी। सो दीज आर ऑपोजिट साइड्स। व्हाट अबाउट ऑपोजिट एंगल, आप अगर ध्यान से देखें एंगल बन रहा है यहाँ पर, हेयर दिस इज द वन ऑफ द एंगल। तो मैंने वन ऑफ द एंगल की रोटेशन आपको दिखाई, तो आप एंगल भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो पहला एंगल है एंगल डी ए बी, डी ए बेस है, उसके ऊपर बी पॉइंट तक जाता हुआ। डी ए बी के ऑपोजिट अगर आप देखेंगे ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन हेयर आपको मिलेगा एक और एंगल, आप कहीं से भी इसकी नेमिंग कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट एंगल। तो ये है हमारा एंगल डी सी बी। तो डी ए बी एंड डी सी बी आर ऑपोजिट एंगल। ऐसे ही आप एक और पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अनदर एंगल इज दिस। तो कहने के लिए हम इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, हम इन्हें सिर्फ इनके वर्टिसेस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी एंड एंगल डी, इन्हें हम ऑपोजिट एंगल कहते हैं। अब ये बराबर होंगे नहीं होंगे इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सिर्फ जान रहे हैं कि व्हाट आर ऑपोजिट एंगल, व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट, व्हेन वी आर सेइंग एडजेसेंट मीन जस्ट नेक्स्ट, एडजेसेंट, ठीक है ना। तो जस्ट नेक्स्ट कहने का मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ये ए डी साइड है, दिस इज द ए डी साइड, ठीक है, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, इसका एडजेसेंट साइड है, इसका एडजेसेंट साइड आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस वन डी सी। तो ए डी के एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट साइड अगर हम लिखें तो ए डी की पड़ोसी है दो। एक तो हम ए डी के एडजेसेंट किसको ले सकते हैं, सी डी को भी ले सकते हैं, और ए डी के एडजेसेंट हम ए बी को भी ले सकते हैं। देखिए ये भी ए डी के जस्ट नेक्स्ट ये वाली एडजेसेंट साइड है, और ए डी के एडजेसेंट ये भी ये है। तो हम इसकी एंड्स पर जो दो साइड्स बनी हुई हैं उन्हें इसकी एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ऐसे आप बी सी के एडजेसेंट साइड्स निकाल सकते हैं। तो बी सी की एडजेसेंट साइड अगर आप लिखेंगे, बी सी की एडजेसेंट साइड होगी बी सी के साथ एक और कौन है, ए बी, और दूसरी तरफ कौन है बी सी के साथ, सी डी, बी सी एंड सी डी। सो दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड। ऐसे ही आप ए बी के लिए लिख सकते हैं। देखिए ए बी के लिए हम पहले भी लिख चुके हैं, ए बी के लिए ए डी है एडजेसेंट साइड, और अगर ए बी को और ध्यान से देखें तो दूसरी साइड है बी सी, ए बी एंड बी सी। सो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल होंगे जस्ट नेक्स्ट एंगल्स, सी दीज एंगल। इसका एडजेसेंट कौन सा एंगल है, एक यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका एडजेसेंट है, और ये इसका एडजेसेंट है। कहने का मतलब ऑपोजिट साइड को, अपोजिट एंगल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बचा दैट इज एडजेसेंट टू दैट एंगल। कहने का मतलब अब एंगल ए के एडजेसेंट अगर हम समझने की कोशिश करें तो एंगल ए का एडजेसेंट कौन है, एंगल ए के जस्ट नेक्स्ट कौन बैठा हुआ है, एंगल ए के जस्ट नेक्स्ट है एंगल बी, और फिर से एंगल ए को अगर दोबारा आप देखने की कोशिश करें तो आपको एंगल डी भी उसके एडजेसेंट मिलेगा, और एंगल सी उसका एडजेसेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एंगल सी ऑलरेडी उसका ऑपोजिट एंगल है। तो आपको यहाँ से एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड समझना था, बिकॉज इसके बेसिस पर ही हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखा कि दिस फिगर 1 इज़ अ पैरेललोग्राम। वाई इट इज़ अ पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑन द अनदर साइड दिस second one is not a parallelogram because opposite sides are not parallel, because only one pair is parallel. There should be both pair of sides should be parallel. In case of a parallelogram we have to remember that both pair of sides are parallel. So this was the rough idea about what are the key features of a parallelogram. So we have understood the elements of a parallelogram. Now let us try to understand the properties of parallelogram.
So we'll be taking three properties here. We'll be discussing three properties here. Sorry, four properties here of a parallelogram. So first property of parallelogram is the opposite sides of a parallelogram are equal. So this is A, B, C, D. So opposite sides are of a parallelograms are equal. So AD किसके इक्वल हो गई है? AD की ऑपोजिट साइड कौन है? हमने भी सीखा BC उसकी ऑपोजिट साइड है, तो AD जो होगी वो BC के बराबर होगी. हमें पता है कि जब हम किसी लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट्स को लिख रहे होते हैं, किसी लाइन सेगमेंट को डिनोट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके दो कोऑर्डिनेट्स को साथ में लिखते हैं. और जब हम एंगल की बात करते हैं तो हमें तीन वर्टिसेस की हेल्प से उसे लिखना होता है. तो थ्री लेटर्स की हेल्प से हम एंगल को लिखते हैं और ट्राइंगल को भी लिखते हैं. तो AD किसके बराबर है? BC के. ऐसे ही आप देखेंगे AD इज इक्वल टू BC. ऐसे ही AB के ऑपोजिट कौन है? AB के ऑपोजिट है CD. तो AB इज इक्वल टू CD. अभी थोड़ी देर में हम इसे जियोजेब्रा पर ट्राई करके देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है. अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर जाते हैं, विच इज़ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. यहाँ पर कहने का मतलब है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. ठीक है, हमें इस चीज़ को समझना है. हम कब कहेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर? तो ऑपोजिट साइड्स का हमने कर लिया. अब हम ऑपोजिट एंगल की बात करें कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो आप पहले देखिए, अब हमें प्रूव करना है या फिर हमें समझना है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहाँ से पहले हम इसकी डायगोनल्स बना लेते हैं. देखिए, जब हम ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो अगर मेरा A, B, C, D पैरेललोग्राम है तो मुझे प्रूव करना है इसकी ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है. कहने का मतलब एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है. दैट इज़, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है दैट इज़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. दीज आर द ऑपोजिट एंगल विच आर इक्वल टू वन अनदर. बट हाउ दिस हैपन्स इज़, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स याद हों तो आप इस रिज़ल्ट को आसानी से प्रूव कर सकते हैं. चलिए आपको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. अगर मैं यहाँ से इस एक डायगोनल बनाने की कोशिश करूँ, सो आई हैव ड्रॉन दिस डायगोनल. ठीक है, आई हैव दिस डायगोनल नाउ. तो डायगोनल के अलॉन्ग अगर आप ध्यान से देखें तो एक एंगल देखिए यहाँ पर है, ये थोड़ी देर का नाम दे देते हैं. इतना सा जो है इसे एंगल 1 बोल देते हैं. ये बचा हुआ जो ये एंगल 2 हो गया. ऐसे ही ये वाला जो है ये एंगल 3 हो गया और ये वाला हो गया एंगल 4. सो यू हैव 4 एंगल्स नाउ. ठीक है, अब हम इन चारों एंगल को देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल 1, हमको ये बात पता है कि दीज आर पैरेलल. AB इज़ पैरेलल टू CD एंड सिमिलरली AD इज़ पैरेलल टू BC. तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा. क्यों होगा? आपने पढ़े होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जब हम किसी पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं और हम इस तरीके से बनाते हैं तो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मतलब ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर होता है. जब ट्रांसवर्स से कोई भी एंगल जाता है तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर कहा जाता है. इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसफर जो जाती है उसकी साइड्स पर बनते हैं और अंदर की तरफ बनते हैं. तो जैसे ही देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है हेयर, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया. ये वाला एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया. क्यों? बिकॉज AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के. और ये पैरेलल लाइन्स के बीच से जो ट्रांसफर्स जा रही है उसके पास बन रहे हैं. सिमिलरली अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलूँ कि BC इज़ पैरेलल टू, BC जो है इज़ पैरेलल टू CD. BC और CD आपस में पैरेलल हैं. BC और CD आपस में पैरेलल हैं. BC और CD जब आपस में पैरेलल है तो हमने क्या देखा कि ये एंगल जो है यहाँ पर एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया. इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज AD इज़ पैरेलल टू BC. दिस इज़ द रूल.
अब हमने देखा कि ऑपोजिट एंगल्स जो, देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करें, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपको क्या देगा, एंगल 1 और एंगल 2 आपको क्या देगा, एंगल 2 जो आपको देगा यहाँ पर, इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो आपको पूरा पूरा जो है ये बराबर मिलेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे, हमें प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। एक तरीका है कि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ पर जोड़िए एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये आपको देगा 1 और 2 जुड़ने पर आपको पूरा क्या देगा, एंगल बी, और यहाँ से आपको पूरा क्या मिलेगा, एंगल डी। तो एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कॉन्ग्रेंसी, जो कि आप सीख कर आए हैं। कॉन्ग्रेंसी देखिए, ट्राइंगल पकड़िए, ट्राइंगल ए बी डी अलॉन्ग द डायगोनल हम ले रहे हैं, एंड ट्राइंगल दूसरा पकड़ा है हमने। देखिए नेमिंग हम ध्यान से रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं ए से बी पे गया और फिर डी पे आया, तो कहने का मतलब मैंने ए बी वाली साइड लिया, तो हम यहाँ जानते हैं कि ए बी की ऑपोजिट साइड जो है सी डी है, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगी। तो हम रूट ऐसा पकड़ेंगे कि सी, देखिए ए और सी आमने सामने, तो पहले लेंगे एंगल सी, सी से हम जाएंगे डी पर, और डी के बाद हम पहुँचेंगे कहाँ पर, डी के बाद हम पहुँचेंगे बी पर। तो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी एंड सी डी बी। इन दोनों ट्राइंगल को आपको देखना है और इसमें हमें कॉन्ग्रेंसी का रूल लगाना है। तो हमें ऑलरेडी पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस ट्राइंगल की जो ए बी है, ए बी डी की, वो किसके बराबर है, ए बी डी ट्राइंगल की जो ए बी है वो ऑलरेडी हमें पता है किसके बराबर होगी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। हम पहली प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर हम देखेंगे बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। दूसरा सी डी, ये बी डी आप कहें, बी डी इज इक्वल्स टू बी डी, क्या है, कॉमन, दिस इज कॉमन। ये ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, देयरफॉर ट्राइंगल जो है ए बी डी जो है वो सिमिलर हो, कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल सी डी बी के। देयरफॉर ये रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, तब भी रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब इनके एंगल जो है बराबर हो जाएंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपके पास ए बी डी जो है वो ऑब्वियसली सी डी बी के बराबर हो जाएगा एंगल। तो आप ये रिजल्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ऑब्वियसली इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। कहने का मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। So hence we have proved this also that opposite angles of a parallelogram are equal. Now let's go to third property, what it has to say. So third property states that adjacent angles in a parallelograms are supplementary. देखिए adjacent angle हमने कहा था, कोई भी दो adjacent ले लीजिए। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इसका adjacent मुझे ये दिखेगा। So I have to prove that this angle 1 and this angle 2 का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब हमें पता है 180, एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमसे कोई बोलता है इट मीन्स 90 डिग्री। तो बट वी आर गिवन विद सप्लीमेंट्री, तो हमें प्रूव करना है कि इसका सम जो है 180 डिग्री होता है। देखिए हम करने को से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बट ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजल्ट है। आप इस एग्जिस्टिंग रिजल्ट की हेल्प से ही आगे बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बाकी भी हम थोड़ी देर में इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री है। ऐसे ही अब कोई भी दो एडजेसेंट पकड़िए, उनका सम 180 ही होगा। एंगल 3 एंगल 4, तो देखिए कितने सारे पेयर बनेंगे। एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 3 भी है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल 4 भी है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसी एंगल 4 का एडजेसेंट जो है वो एंगल 2 है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम लगभग सारे रिजल्ट लिख चुके हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी 1 हमें बता चुकी कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होता है। एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के ही को ही रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जब एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, तो आप एंगल 4 को रिप्लेस कर लीजिए एंगल 1 से, या फिर एंगल 1 को एंगल 4 से रिप्लेस कर लीजिए, रिजल्ट सेम रहेगा। सेम इज हेयर, यहाँ आप देखेंगे क्योंकि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है,
एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर, तो एंगल 3 एज इट इज रहा, तो एंगल 4 को हमने रिप्लेस कर लिया है। ऐसे ही आप 2 एंड 3 के लिए भी देख सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, दैट उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। अनदर प्रॉपर्टी इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए बाइसेक्ट ईच अदर, अब बाइसेक्ट कहाँ करेंगे, पहले सबसे पहले हम डायगोनल्स बना लें इस पैरेललोग्राम की। अगर हमें ये पैरेललोग्राम मिला हुआ है तो लेट्स ड्रॉ इट्स डायगोनल फर्स्ट, देन वी विल डिसाइड कि हमें किस तरीके से इसको देखना है। सो फर्स्ट डायगोनल आई हैव ड्रॉन, लेट अस ड्रॉ अनदर डायगोनल। इन रो सेकेंड डायगोनल, अब दोनों डायगोनल बना रही है तो ये है ए बी सी डी। अगर मेरा पैरेललोग्राम है तो दो डायगोनल कौन कौन सी बनाई मैंने, ए सी एंड बी डी। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, कहने का मतलब अगर ये पॉइंट ओ है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देती है। कहने का मतलब ए सी जो है वो बी डी की बाइसेक्टर है एंड बी सी जो है वो ए सी की बाइसेक्टर है। कहने का मतलब बी डी जिस पॉइंट से जाएगी वो ए डी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, विच इज़ ए ओ एंड ओ सी। सो आपका जो ए सी है वो बाइसेक्टेड है दो पार्ट में, विच इज़ ए ओ एंड ओ सी। ऑल्सो ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग। ऐसे ही अब हमने देखा है ये कब केस है, जब बी डी जो है वो ए सी पे से जा रही है। अगर हम कहें कि ए सी अब बी डी के ऊपर से जा रही है तो ए सी जो है वो बी डी के दो बराबर हिस्से कर देगी। तो यहाँ पर बी डी के दो बराबर हिस्से जो आएंगे, बी डी के दो इक्वल पार्ट्स क्या आएंगे, बी डी के जो दो इक्वल पार्ट होंगे वो होंगे बी ओ एंड ओ डी, और ये क्या होते हैं, बी ओ जो होता है वो ओ डी के बिल्कुल बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर। ठीक है, सो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर कहने का मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। अब यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम जियोजेब्रा में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। सो लेट्स गो टू द जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर फर्स्ट। सो वी आर नॉट गोइंग फॉर मेकिंग ग्राफ, हमें ग्राफ नहीं बनाना है, तो हम यहाँ से टूल लेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में से हम लेंगे, हमें पहले बनाना है पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड चाहिए, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन टूल होगा। तो पैरेलल लाइन टूल के लिए हमने कहा पहले एक पॉइंट ले लीजिए आप। पहले हमने एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट से पास करने वाली वो हमें पैरेलल लाइन दे देंगे। तो ठीक है, अब हम यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हम एक बार पहले एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन गई। अब इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है, तो हमने क्या लिया, एक पॉइंट, और किसके पैरेलल बनानी है, हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन बना ली। अब ये पॉइंट सी जो है इस थोड़ी देर के लिए मूव कर लेते हैं हम थोड़ा इधर। ठीक है, अब हम ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें एक और लाइन सेगमेंट मिल जाए। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम में ऑलरेडी जो है अब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो ए बी के पैरेलल बनाए लाइन। ठीक है, तो लेने के लिए अब लाइन सेगमेंट हमें पता नहीं ये पॉइंट को हम कहाँ लें, बहुत सारे पॉइंट ऐसे अवेलेबल है, बट हमें पैरेलल चाहिए। तो पैरेलल चाहिए तो हम इसके पैरेलल बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इसके पैरेलल एकदम लाइन है। अब इस पैरेलल लाइन को हमें इधर लाना है, तो इसे मूव करेंगे, हम बी पर ले जाएंगे इसे। ये देखिए हमारा बी पॉइंट, तो हमारा डी पॉइंट जो होना चाहिए वो इसके ऊपर इधर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि यही पॉइंट है, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं यहाँ पर, कि मतलब ये और ये कहाँ टकरा रही हैं, जी पर, ये और ये कहाँ टकरा रही हैं, एफ पर, ये दोनों कहाँ टकरा रही है, आई पर, और ये दोनों कहाँ टकरा रही हैं, जे पर। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हम शुरू के सारे पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं। ठीक है, हम सी पॉइंट हमें नहीं चाहिए, डी हमें नहीं चाहिए, ई भी हमें नहीं चाहिए,
हमें एफ भी नहीं चाहिए। हम देखिए हमारे पास अब क्वाड्रिलेटरल हमारा जो बना है वो है जी एच आई। देखिए इसे मैं एलेबोरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम, ठीक है, तो हमारा ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। अभी इसे हम फटाफट से लाइन सेगमेंट से जोड़ लेते हैं ताकि हमें लाइनों को, जब हम अपनी लाइंस को हाइड करें तो हमारा पैरेललोग्राम हाइड ना हो। तो अब हम पैरेललोग्राम को इजीली देख सकते हैं। तो हम पहले सारी लाइंस को हटा देते हैं, जितना भी लाइन हमने बनाई है। देखिए हमें लाइंस कोई नहीं चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए। अब हमारी कौन सी आई एच लाइन और रह गई, तो आई एच लाइन हम यहाँ नीचे ढूंढेंगे। तो आई लिए रही लाइन जी, ठीक है। सो दिस इज़ द पैरेललोग्राम, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम जो हमें चाहिए था। अब हमें चेक करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। सबसे पहले हमने सीखी थी ऑपोजिट साइड्स। तो देखिए हमें देखना है कि जी जे जो है वो जी एच आई के बराबर है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके सेटिंग्स में जाकर हम यहाँ से जो है शो लेबल कर देंगे, और लेबल में हम नेम नहीं, नेम एंड वैल्यू कर लेंगे कि हमें दोनों की वैल्यू भी दिखती रहे कि इसका कितना यूनिट है। तो देखिए के जो है, मतलब ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है जी जे, वो 5.9 यूनिट की है। अगली है हमारी आई एच। तो यहाँ से हम करेंगे शो लेबल नेम एंड वैल्यू, ऐसे ही हम इसके लिए करेंगे शो लेबल में नेम एंड वैल्यू। हमारी ये सेटिंग्स में शो लेबल नेम एंड वैल्यू, सेटिंग्स में जाकर शो लेबल नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू चुन लेते हैं। यहाँ से सेटिंग्स में जाकर नेम एंड वैल्यू। तो देखिए अब हमारी जी एच, ये रही जी एच, हम इसके नेम एंड वैल्यू शो कर देते हैं। जी एच देखिए कितनी आ रही है, 6.1। तो हमारी जी आई जो है वो भी 6.1 आनी चाहिए। देखिए सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने सबसे पहले सीखी। आप इस पैरेललोग्राम को कितना भी मूव करिए, लेट्स ट्राई टू मूव इट। अगर हम इसे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करें तो उसके लिए पहले हमें लाइंस वापस चाहिए होंगी। अब हम इसके एक बार एंगल्स को देख लेते हैं। तो हम किसी भी साइड का अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो अभी मूव नहीं हो रहा है, आई विल ट्राई लेटर। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा दिखा। अब हम एंगल के साइज़ की वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। जब हम एंगल्स का साइज़ देखने की कोशिश करेंगे तो टूल को हम इस तरीके से लेंगे, हम एंगल मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यार रोटेशन पर फ़र्क आता है, तो इसने आउटसाइड वाला एंगल लिया, बट हमें इनसाइड वाला एंगल चाहिए। तो हमें इसकी रोटेशन को जो है वो दूसरी तरीके से लेना होगा। तो हम रोटेशन को अलग तरीके से लेंगे इस बार, फिर ट्राई करके देखते हैं कि एंगल कितना आता है। तो लेट्स ट्राई अनदर साइड, ये वाला भी रिमूव कर देते हैं हम। टूल पर वापस जाएंगे, सो दिस विल टेक दिस टाइम। सो दिस इज़ 107.1। अब हम इसका ऑपोजिट एंगल हमें कौन दिख रहा है, एच। तो हम एच की मेजरमेंट देखने की कोशिश करते हैं। ये इसने फिर से आउटसाइड एंगल बनाया है, तो दिस विल बी द थिंग। तो देखिए 107 दोनों एंगल हैं। अब हम देखते हैं जी और आई को। देखिए 72.9 72.9। तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स में हमारे जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसके बाद जो हमें अगली प्रॉपर्टी देखनी थी वो था कि ऑपोजिट साइड्स, मतलब एडजेसेंट साइड्स के एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप यहाँ से देखिए 107.9 को जब आप 72.9 में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 107.1 प्लस 72.9 विल ऑब्वियसली गिव यू 180 डिग्री। तो हमारी वो प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई कर रही है। फोर्थ हमारी थी डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो लेट्स फटाफट से हम डायगनल्स बना लेते हैं। पहली डायगनल हमने बना ली जी आई,
दूसरी डायगोनल हम बनाई है GH। अब हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि टकरा कौन से पॉइंट पर रही है, तो हमें इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए विच इज़ L। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब हमें देखना है कि KL LH के बराबर है। सो लेट अस ट्राई टू सी दिस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग्स में जाके इसको लेबल दे देते हैं, नेम एंड लेबल। देखिए जो ये पूरी Q है ये 7.1 है, तो 7.1 का आधा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर हमें 7.1 का आधा होना चाहिए विच इज़ 3 आपका आएगा ये 3 कितना आएगा 3.5 हो गया। और फिर 10 का आप जब आधा करेंगे तो इट विल गिव यू फर्दर 0.5, तो इट विल गिव यू 3.55। लेट अस चेक कि हमारा कितना आ रहा है KL जो है। तो लाइन सेगमेंट हमें KL की वैल्यू चाहिए, तो KL को अब देखते हैं हम कितना आया हमारा KL। लेट अस ट्राई KL कितनी आई है लाइन सेगमेंट। यहाँ पर हमने KL जो बनाई है, सॉरी LJ, ठीक है, तो LJ देख लेते हैं कितनी आई हमारी। सो दिस इज नेम एंड लेबल। सो देखिए 3.5 आ रही है, बिल्कुल 7.1 का लगभग हाफ है, ठीक है। सो ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 ही आएगी हमारी जो दूसरी लाइन सेगमेंट है। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन सेगमेंट ऑल्सो। फटाफट से हम इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये भी उतनी आ रही है। तो ये हमने LN बना ली है। इस लाइन से LH का देखते हैं, टूल में जाकर हम इसको शो लेबल कर देते हैं, नेम एंड वैल्यू। तो आप देखेंगे ये भी 3.5 के आसपास ही आ रही है। तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। तो कहने का मतलब है L पॉइंट ने KH पॉइंट को जो है वो बाइसेक्ट किया है। किस तरीके से L पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो 7.1 का आधा 3.5 एंड 3.5 दोनों साइड है। यही अगर आप डायगोनल GI के लिए ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि LI जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा LG के। दिस इज कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब वो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो KH जो है वो GI को बाइसेक्ट कर रही है। और अनदर वे भी कहना सही होगा कि GI जो है वो HK को बाइसेक्ट कर रही है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ में अभी सीखा। So fourth property जो हमारी थी, diagonals of a parallelogram bisect each other. So with this we have finished our properties of parallelogram. So you can also try some questions on this which are given in your exercises. NCERT की बुक में कुछ exercises में आपको questions मिले हुए हैं supplementary angle का यूज़ करते हुए, opposite sides का angle का यूज़ करते हुए, तो आप try कर सकते हैं। तब तक के लिए stay safe, stay home and keep learning, and don't forget to wear your mask whenever you are going out. So this is from Mr. Math signing off. God bless you all. Take care.